हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरे जो फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये सेशन लेके आया हूँ। तो इस सेशन के बारे में जस्ट ब्रीफली बताता हूँ। ये एसएससी सीजीएल 2023 जो कि 14 जुलाई से होने वाला एग्जाम है। ये देखिए, इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स चैंपियनिंग इन मतलब आपको 6 महीने का जनवरी टू जून आपके 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के आप चैंपियन बन जाएंगे। सो लास्ट मिनट प्रिपरेशन विद एसएससी झा क्लासेस। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो इस करंट अफेयर्स क्विज में देयर विल बी 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे? 25। सो 25 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। मैं 1 to 25 रीड कर दूंगा, तब मैं आंसर नहीं बताऊंगा। आप अपना पेन पेंसिल निकाल लीजिए। पेन पेंसिल में आप अपना आंसर ABCD करके सारे क्वेश्चंस 1 to 25 कर लीजिए। खत्म होने के बाद मैं अब क्वेश्चंस के आंसर्स और अपने इनपुट आपको दूंगा जहां पे भी जरूरत होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज एन इनिशिएटिव बाय टीम परीक्षा सारथी, जो कि मुझे कंटेंट एंड ये सब प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड्स। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम राजीव रंजन झा, एक्स डिप्टी कमांडेंट विद CRPF. So, friends, now the questions will start. Be ready with your pen and paper. So, we move to the first question. I will read it for you. What is the new name of Rashtrapati Bhavan's Mughal Garden? And your options are Amrit Udyan, Sheesh Mahal, Bagh-e-Jahan, Shalimar Bagh. वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स। अगर आप कहीं रुक जाते हो, नहीं पढ़ पाते हो मेरा रीडिंग के साथ, तो यू जस्ट पॉज माय वीडियो, मार्क योर आंसर, देन गो अहेड। सो द क्वेश्चन नंबर 2 कम्स इनटू योर स्क्रीन। Who was the chief guest at the 74th Republic Day function of India? And your options are option A Joe Biden, Scott Morrison, Vladimir Putin, Abdel Fattah al-Sisi. Question number 3. Recently, in which state was the Sudarshan Prahar exercise organized by the Indian Army and Air Force jointly? And your options are A. Uttar Pradesh, B. Maharashtra, C. Rajasthan, and D. Gujarat. We move to the question number 4. Who has been appointed as the chairperson for National Statistical Commission for a period of 3 years? And your options are A. Rajiva Lakshman Karandikar, B. Vijay Kumar Saraswat, C. Ramesh Pokhriyal, D. Pradeep Kumar Rawat. Question number 5 is, who is the author of the book The Chipko Movement, which won the Kamla Devi Chattopadhyay NIF Award 2022? And your options are in front of you. Option A Shekhar Pathak, B. Arundhati Roy, C. Maheshweta Devi, and D. Vandana Shiva. Question number 6. Who was recently appointed as the chairman of National Commission for Backward Classes? And your options are A. Hansraj Ahir, B. D.Y. Chandrachud, C. Rajiv Shukla, D. Ved Prakash Gulati. Question number 7. Who was appointed as the 50th Chief Justice of India? And your options in front of you. A. Justice Hansraj Ahir, B. Justice D.Y. Chandrachud, C. Justice K.V. Ramana, D. Justice V.K. Kamath. Question number 8. Who is the author of the famous book Freedom at Midnight, who died recently? A. Hansraj Ahir, B. Joseph Marcel, C. Dominic Lapierre, D. Diana Radcliffe. Who was elected as the first female president of Peru? And options are A. Samantha Rocks, B. Suzanne Sandra, C. Brittany Wellington, D. Diana Bullard. Diana Bullard is the option D. 10. Who is the author of the book The Light We Carry? And your options are A. Shivni Sheldon, B. Jeffrey Archer, C. Dominic Lapierre, D. Michelle Obama. Question number 11. Where was the first India International Science Festival IISF 2022 held? Options are A. Delhi, B. Mumbai, C. Bhopal, and D. Kolkata. Question number 12. Which organization recently launched Utkarsh 2 for the period of 2023 to 25? A. Reserve Bank of India, B. World Health Organization WHO,
C. United Nation. D. International Monetary Fund IMF. Question number 13. Where was the International Kite Festival 2023 celebrated recently? And your options are A. Goa, B. Kerala, C. Rajasthan, D. Gujarat. Question number 14. What was the India's rank in the index in the recently released 11th Global Food Security Index? And your options are A. 31st, B. 51st, C. 71st, D. 91st. Question number 15. Who has been appointed as the chairperson of Atomic Energy Regulatory Board? AERB. And your options are A. Dinesh Kumar Shukla, B. Tamal Bandyopadhyay, C. Ved Prakash Gulati, D. Nikhil Kamath. Question number 16. Who is the author of the book Roller Coaster An Affair with Banking? And your options are A. Chetan Bhagat, B. Tamal Bandyopadhyay, C. Amish Tripathi, D. Kasturi Roy. 17. Which day is observed as World Leprosy Day? And your options are A. 30th January, B. 31st December, C. 15th November, D. 28th February. Question 18. Who recently won the first silver medal for India in the World Blitz Chess Championship in Almaty, Kazakhstan? And your options are Magnus Carlsen, B. Vishwanathan Anand, C. Koneru Hampi, D. Vasilin Topolov. Question number 19. Which country recently won the FIFA World Cup 2022 title? And your options are A. Germany, B. Brazil, C. France, D. Argentina. We move to the question number 20th. Which Indian Institute of Technology, IIT of India, has created Bharat OS, a made in India mobile operating system? And your options are A. IIT Bombay, B. IIT Delhi, C. IIT Madras, and D. IIT Kharagpur. 21. From which place in Uttar Pradesh did Prime Minister Narendra Modi flag off the world's longest river cruise, MV Ganga Vilas? And your options are A. Lucknow, B. Kanpur, C. Varanasi, and D. Agra. We move to the question number 22nd. National Youth Day is celebrated to commemorate whose birth anniversary? And your options are A. Mahatma Gandhi, B. Swami Vivekananda, C. Jawaharlal Nehru, and option D is Rabindranath Tagore. 23. Question number 23. Who is the composer of the Golden Globe Award winning song Nato Nato from the movie RRR or Triple R? And options are A. A.R. Rahman, B. M.M. Kiravani, C. Anirudh Ravichander, D. Santosh Narayan. We move to the question number 24. Who won the Australian Open 2023 women's single title? And the options are A. Serena Williams, B. Naomi Osaka, C. Ashley Barty, D. Ariana Sabalenka. We move to the last question for the day from the January month, and the question is in front of you. World Hindi Day or Vishwa Hindi Divas is celebrated on which day every year? And your options are A. 10th of January, B. 15th November, C. 17th February, D. 11th December. Now friends, you can stop your answers here. We will move and discuss each and every question, and will not take more than 5 minutes here, because now from 14th आपके एग्जाम्स है, so you have to prepare. So last moment GK brush up मैं आपको करा रहा हूँ, and question number first comes in your screen. Check your answers now. So first question is, what is the new name of राष्ट्रपति भवन's मुगल गार्डन? मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन में है, उसका नाम it has been changed, and the option A, that is Amrit Udyan, is the correct answer. Who was the chief guest at the 74th Republic Day function of India? And you know that these three were not the chief guest. Option D, that is Abdul Fattah al-Sisi. So option D is the right answer for the question 2. आपको ये बता दूं, अभी इजिप्ट के ये प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज वेंट टू इजिप्ट रिसेंटली, एंड ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड भी इंडिया को मतलब इजिप्ट ने
ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड पर नरेंद्र मोदी जी को दिया है, विच इज 13 सच स्टेट ऑनर गिवन टू नरेंद्र मोदी जी बाय द डिफरेंट कंट्रीज। एंड यही अब्दुल फतेह अल सीसी वाज द chief guest on the 74th Republic Day parade, that is this year's Republic Day parade. Recently, in which state was the Sudarshan Prahar exercise organized by the Indian Army and Air Force jointly? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये जैसलमेर में हुआ था। एंड आपको पता है जैसलमेर इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर। आई एम नॉट राइटिंग इट, यू कैन राइट योर रनिंग नोट्स। सो जॉइंट एक्सरसाइज था इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स का जॉइंटली। We move to the answer of question number 4. Who has been appointed as the chairman of National Statistical Commission for a period of 3 years? तो इनको 3 years के लिए पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है और इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चिपको मूवमेंट विच वन द कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ अवार्ड 2022? यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसको रिमेंबर करने के लिए और कोई तरीका नहीं होता है, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, दैट इज शेखर पाठक जी इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। ठीक है, द चिपको मूवमेंट। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है हंसराज अहिर जी, ऑप्शन ए इज अपॉइंटेड। ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? और अभी भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यू मस्ट बी नोइंग श्योरली द नेम। ऑप्शन बी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इज द राइट आंसर। Who is the author of the famous book Freedom at Midnight, who died recently? ये बुक बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चंस में पूछा है, it has been asked many a times, and this author has died recently, so it becomes an important question, and option C, that is Dominic Lapierre is the right answer. ठीक है, who was elected as the, or who has been elected as the president of Peru? So प्रेसिडेंट ऑफ पेरू फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ये है डायना बोलाट। ठीक है, डायना बोलाट इज द ऑप्शन डी एंड इट इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट वी कैरी? ये भी अगेन फर्स्ट लेडी या एक्स फर्स्ट लेडी जो थे मिशेल ओबामा, बराक ओबामा जी की वाइफ, इन्होंने ये बुक लिखा है, द लाइट वी कैरी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट हियर। Where was the India's International Science Festival IISF 2022 held? तो फ्रेंड्स दिस वाज, यू हैव टू रिमेंबर इट, इसका कोई और तरीका नहीं है, भोपाल वाज द करेक्ट आंसर, भोपाल में हुआ था ऑर्गेनाइज। ऑप्शन सी। Which organization recently launched उत्कर्ष 2 for the period of 2023 to 2025? तो ये फ्रेंड्स आपके सामने में क्लियर है, ये इंडिया का था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह के लॉन्च करते हैं, बट ये आरबीआई ने टू फॉस्टर मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, तो उत्कर्ष 2 जो है ये लॉन्च आरबीआई ने किया है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Where was the International Kite Festival 2023 celebrated recently? तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया था गुजरात में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What was the India's rank in the recently released 11th Global Food Security Index? So option C is the correct answer, और इसमें फिनलैंड was the top, इन्होंने टॉप किया था, आवर रैंक वाज 71st। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसको की एब्रिविएशन है AERB? सो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आप रिमेंबर कर लीजिए, दिनेश कुमार शुक्ला जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग? तो ये जो है ये ऑथर एंड उससे है, देखिए मैंने डिफरेंट फील्ड से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है,
स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तमाल बंदोपाध्याय जी ये इकोनॉमिक बुक्स ही लिखते हैं, इकोनॉमी से ही रिलेटेड किताब लिखते हैं, आप रिमेंबर कर लीजिए ऑप्शन बी। ठीक है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड लेप्रेसी डे, तो ये आप लोगों ने मोस्टली पढ़ा होगा और ये हमें याद करना होता है। इंपॉर्टेंट डे है 30th जनवरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who recently won the first silver medal for India in the World Bliss Chess Championship इन कजाकिस्तान? ठीक है, अल्मटी कजाकिस्तान में ये हुआ था। देखिए सारे ही प्लेयर हैं, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथ आनंद, बट ये जो ब्लिट्स मतलब फास्ट रैपिड चेस, और इन्होंने कोनेरू हम्पी जी ने सिल्वर मेडल इसमें लिया था और आवर कंट्री, और इन्होंने कंट्री को प्राइड दिलाया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो इकोनॉमीज, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल, सबसे आपका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जनवरी लेके आया हूँ। विच कंट्री रिसेंटली वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? फीफा वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ था, आपको याद होगा, लियोनल मेसी अर्जेंटीना के, इन्होंने जिताया था अपने कंट्री को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फाइनल खेला गया था विद फ्रांस, फ्रांस हार गई थी, लॉस्ट, ये जीते थे। ठीक है फ्रेंड्स। Question number 20. Which Indian Institute of Technology, that is IIT of India, has created Bharat OS? तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी में। ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर। We move to the question number 21. From which place in Uttar Pradesh did Prime Minister Narendra Modi flag of the world longest river cruise? MV गंगा विलास। तो ये क्या रिवर क्रूज है, और ये वाराणसी जो है करेक्ट आंसर है। ये क्यों? क्योंकि जो मोदी साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का पार्लियामेंट्री या एमपी वहीं से है, एमपी का कंस्टिट्यूएंसी वही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट हुज बर्थ एनिवर्सरी, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है इसमें, दैट इज स्वामी विवेकानंदा जी के बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए वी सेलिब्रेट द नेशनल यूथ डे। Friends, we move to the question number 23. Who is the composer of the Golden Globe Award winning song NATO NATO? तो इसका जो बहुत सीधा सा डायरेक्ट, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम किरावनी जी इसके कंपोजर हैं। 24 क्वेश्चन, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल? जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये जो प्लेयर्स हैं इसमें से ज्यादा अभी खेल नहीं रहे हैं। अरीना सबलेंका जो कि खेल रही है प्रेजेंटली, और डी, इन्होंने वुमेन्स का जीता था। मेन का जो था नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता था। मूव टू द 25th और द लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे और विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? ये आपको रिमेंबर करना होगा, 10th ऑफ जनवरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आई वंस अगेन थैंक्स टू द टीम परीक्षा सारथी, क्योंकि वो इतना मेहनत करके ओनली नीड टू नो इंफॉर्मेशन लाके आपके सामने रखते हैं। तो अब जो है मैं जनवरी टू जून, दैट इज लास्ट 6 months का, इन 6 सेशंस, आज का पहला सेशन हो गया, ऐसे 6 सेशंस में मैं खत्म कर दूंगा। तो आपका करंट अफेयर्स का काफी पार्ट खत्म हो जाएगा। मगर फ्रेंड्स, इस मैगजीन में और भी ज्यादा नीड टू नो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि ये तो मेरे पिक्ड क्वेश्चंस थे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे परचेज मंथली मैगजीन, जो है बाई मंथली मैगजीन है एक्चुअली, ये मंथ में 2 आता है। सो यू कैन परचेज दिस बाई मंथली मैगजीन, एंड व्हाट्सअप नंबर इस पे आप संपर्क करें 9950239676। एंड टू नो दिस टाइप ऑफ करंट अफेयर्स, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल हो रहा है, तो मैं आपका करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ पूरा ब्रशअप करा दूंगा। सीएचएसएल होगा उसका ब्रशअप कराऊंगा, आईबीपीएस का होगा तो उस तरह से मैं ब्रशअप कराता रहूंगा। सो इस सब के लिए एसएससी झा क्लासेस, जो कि मेरा चैनल है, इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आई एम पुटिंग ए एंड ओवर हियर। कल मिलते हैं विथ फेब्रुवरी सेशंस। थैंक यू एंड गुड लक फ्रेंड्स, अपना प्रिपरेशन जारी रखें। मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डाउट्स भी आप मेरे को पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। आप मुझे डाउट्स कमेंट सेक्शन में बोलें, लिखें। स्कोर, अपना स्कोर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, कितना आया आपका 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने करेक्ट किए। और अपना अगर कोई भी डाउट होता है, आप अपना डाउट्स मेरे को पुट अप कर सकते हैं इन करेंट सेक्शन। सो फाइनली, गुड लक टू